माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, one request, sir. If I have my number 2. That's 5 minutes. कौन बोल रहे थे? श्री Mr. Dangi, have you concluded? Sir, I have to continue, sir. I just started, sir. Okay. Yes, sir. But how long will you take? Sir, Give your as assessment. As much time as you can give, sir. Sir, I was supposed to speak for, I think, 20 minutes. But I just spoke for, I think, 2 minutes, I think. Take your time, no issue. Right, sir. This is a very important issue. Right, very, sir. very important issue. Please go ahead. Right, sir. Thank you so much, Chairman, sir. So, 1 second. Ji, sir. There is a difficulty with Mr. Sarkar. Ji, sir. If you all agree, he can speak for 5 minutes. Then can you resume? Sir, If the House finds it in order. sir, continuity is there. So in between, sir, like I had spoken for 2 minutes. There's no problem with me, although. Sir, I'll speak for a little, not much. I won't take much time. Okay, okay. Go ahead. I won't take much time. I'll finish up as early as possible. Okay. Right, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी, मुझे अपनी बात को पुनः कंटिन्यू करने का जो मौका दिया है। हम लोग चर्चा कर रहे थे संविधान की, और भारत का संविधान हर उस पिछड़े तबके को, वंचित वर्ग को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने की बात करता है, जोर देता है, और संविधान की प्रस्तावना में भी सभी को सामाजिक आर्थिक न्याय की गारंटी भी देता है। एक शेर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि सदन का माहौल उस समय थोड़ा गर्म हो गया था। नहीं, अब तो नहीं है। शहीदों की शेर कह सकते हो, पर माहौल अब गर्म बिल्कुल नहीं है। माहौल अच्छा है सर, यही माहौल होना चाहिए सर, यही माहौल रहना चाहिए, क्यों बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शेर सुनाइए आप। शहीदों की लहू स्याही से ये संविधान बना है, शहीदों की लहू स्याही से ये संविधान बना है, हर दिन संभाल के रखो मेरा देश महान बना है। राज्य से यह अपेक्षा की गई कि राज्य आर्थिक विषमताओं और आय में असमानता को कम करने का प्रयास करेगा और विभिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्तियों और लोगों के समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने का लगातार प्रयास करता रहेगा। और राज्य विशेष सावधानी के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए उसे बढ़ावा देता रहेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। मैं कहना चाहूँगा कि इस विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सभापति महोदय, और जो ज्वलंत जरूरत है इस बिल के लिए, वो है जातिगत जनगणना। आज भी सरकार के पास ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के सटीक आंकड़े नहीं हैं, और जातिगत जनगणना सर मुझे बोलने तो दीजिए सर। सर आंकड़े अगर है तो 2021 का सेंसस क्यों नहीं सामने आया सर? सर 1 second. Take your seat. Mr. Rijuji, सर आंकड़े हैं तो Honorable Parliamentary Affairs Minister, please restore order. Ask them to sit down. Please sit down.
One second, sit down. Sit down, sit down. Sit down, sit down, sit down. नहीं, सुनिए. Honorable members, one second, please. Honorable members, every member of the House has a right to say his point of view. They don't want this. And you will have your right to contradict it. If a member is saying something here, he has a right. I think, Honorable Parliamentary Affairs Minister, we cannot continue with debate if someone has to speak only what you want or what they want. There will be different voices. I would appeal to, I will appeal to everyone in the House. One second. I will appeal to honorable members that there is always the other point of view. It is not necessary that we agree to that point of view, but we cannot say that we will not allow that other point of view to be indicated. No, we will not allow. I would appeal, Honorable Parliamentary Affairs Minister, we must maintain order in the House. Absolutely. Your people will have full right to put their point of view. Use your skill, use your energy, and put a point across. Madan ji, no. Let me tell you, honorable members, please, more serious issues, more contentious issues, more divisive issues were before the Constituent Assembly. But debate took place. Ultimately, the House will decide which way we go. The House will have a final say what happens to this bill. But if we start interrupting a member merely because the member is saying something to which you may not agree, no, then can I ask a member not to make a point? I will stop a member if the member is making a point which is factually wrong. He is a point of view. If a member, so honorable ministers, अपनी सत्यता को रखा यहाँ पर. Ask them to. Please continue. Sir, please continue. No. सर, ये जो आंकड़ों की बात कही गई है, ये जातिगत जनगणना से ही संभव है. और सर, ये क्या मतलब है सर? सर, इसमें गलत क्या है सर? इसमें गलत क्या है सर? ये तरीका गलत है सर. Let me deal with it. सर, इस विरोध से ये लगता है. One second. Please. Honorable. एक बात. Honorable Parliamentary Affairs Minister. बात छोड़ो. Honorable, one second. Honorable Parliamentary Affairs Minister. सर, ये ओबीसी के खिलाफ की बात हो रही है. One second. Honorable, one second. देखिए. तो इसका सहयोग करो. तो सहयोग करो मेरी बात का. तो मेरी बात का सहयोग करें. अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आपको बोलने का अधिकार है. Mr. Neeraj both. No. Honorable Minister, please stop them. Please stop them. Stop. One second. Please. All of you, sit down. Honorable Minister, 1 second, please. Honorable Minister, your member there, the House is there. Mr. Samik Bhattacharya, you want me to name you? Honorable Minister, I am saying one thing, please listen to me carefully. One second. I am saying in this House, there will be various points of view. People may not agree to all points of view. People may totally disagree. Ultimately, it is the will of the House that will be reflected when we come at the time of voting. So my point is, no, you should also do it like this. You should also do it like this. Why only? I appreciate Jayadi's gesture, but you also do it. So if there is a point of view, honorable members, if there is a point of view
which one member is projecting, and you do not like that point of view, or you want to contradict it, you can do it at your term. Yes, Mr. Piyush Goyal, what do you have to say? Honorable Exactly on Chairman, this. sir, I just saw on my Twitter handle a tweet by Honorable Member Shri Sanjay Singh ji, in which he is making an allegation that BJP is against, amongst others, Adivasis. It is they who made the ruckus in the house. It is they who insulted a lady who was sitting in the chair, who comes from the Adivasi community. Ms. Konyak is an Adivasi. They are insulting an Adivasi who is sitting on the chair. And then they are making such kind of allegations on the proceedings of the House. I demand an apology. Mr. Sanjay Singh should apologize. It's an insult of the chair. The chair, he has insulted an Adivasi who was sitting on the chair. Sanjay Singh, again and again, and the entire Mr. Piyush Goyal, opposition, take your seat now. Congress, Mr. Piyush Goyal, take your again and take your again, seat. Take your seat. they Take your seat. Take your take your seat. Take your seat. Take your seat. Sir, it can... Take your seat. Take your one second. One second. Take your seat. Take your seat. सुनो एक सेकंड वन सेकंड एक सेकंड Nothing will go on record. Nothing is going on record. You can have this wrestling match. Nothing will go on record. I will address the House while sitting. Honorable members, if you were to see what happened here, it is not being shown. You will be shocked and surprised that this kind of indecorous behavior is nowhere available. And it is duty of every member of the House at least to maintain minimal standard. I cannot request you to exemplify your conduct that others can follow you. Minimal. One thing is, Mr. Piyush Goyal referred to a tweet. One second, you referred to a tweet. And this tweet, none of the members have seen. I saw it just... One second. None of the members have seen. Why were they reacting? No. This is not the number 1. Number two. 1 second.
listen to me. Listen to me. Number two, if I am in the chair, why don't you trust me? So both sides have engaged into something. Yes, Mr. आपने अभी कोशिश किया और आपने जो बताया हम लोगों ने सब सुन लिया। मेरा 2 पॉइंट है सर। पहला जो ट्वीट के बारे में रेफर किया, मेरा कलीग पीयूष गोयल जी ने जो बताया कि संजय सिंह जी ने एक ट्वीट किया है, हम लोग ने ट्वीट नहीं देखा। अगर ये ट्वीट सही है तो मिसलीडिंग है, तो उसको डिलीट करने का निर्देश सर अपने चेयर से होना चाहिए। नंबर टू सर, उसके बाद कार्रवाई जैसे उपयोग होगा सर, आपका चेयर से कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए। दूसरा बात, जो मूल बात जहां पे बहस हो रहे हैं, मैं खुद एक शेड्यूल्ड ट्राइब हूं, मैं बैकवर्ड क्लास से आता हूं, लेकिन अगर भाषण देते समय इस चर्चा के दौरान बीजेपी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी के लिए जितना काम किया है किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। लेकिन यहाँ अगर एलिगेशन लगाता है तो मैं ये समझता हूँ कि इतना काम करने के बाद हमारा सरकार को एलिगेशन लगाएगा तो हमारा मेंबर जरूर रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्योंकि आरक्षण का विरोध कांग्रेस पार्टी का नेताओं ने हमेशा किया है, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन के खिलाफ, चाहे वो ओबीसी में उस समय का प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का पोजीशन सबको मालूम है, नेहरू जी का पोजीशन सबको मालूम है। आज ये कह रहे हैं हमको रिजर्वेशन के खिलाफ का आरोप लगा करके हाउस को और देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं, तो मिसलीडिंग नहीं करेंगे तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मिसलीडिंग स्टेटमेंट करके हम लोग को गलत धारणा यहाँ सदन में रखना, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट पे मैं सर आपका सलेक्शन चाहता हूँ। 2 minutes, so that we proceed with the. धन्यवाद मान्यवर, इस सदन की कार्रवाई के बारे में सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग ट्वीट करते हैं। अब देख लीजिए सर, आपने अलाउ किया है, वो बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना सर। ट्वीट करते हैं। प्लीज, हमारे एक साथी ने, anyone interrupts, हमारे एक साथी ने यहां पर ओबीसी आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया जाए, ये बहस जी आपको बोल रहा हूं सर, वो बहस में हिस्सा ले रहे थे नीरज डांगी जी, सब लोगों ने रोका सर। सर 1 मिनट सर 1 मिनट सर हाउस क्यों एडजर्न हुआ सर? 1 मिनट, एक मिनट सर, हाउस सर मुझे आपने 2 मिनट का टाइम दिया है, प्लीज 2 मिनट का सर टाइम दिया है, मुझे अपनी बात करने दीजिए। इन लोगों ने रोका, हाउस एडजर्न हुआ सर। अगर रोका नहीं तो हाउस एडजर्न क्यों हुआ? आपने रोका, मैंने उसको ट्वीट कर दिया, मंत्री जी नाराज हो रहे हैं, इतने लोग इनके पीछे खड़े होके हमको धमका रहे हैं। हम धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। आप जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं आपके सामने सर, उधर से कह रहे हैं इनको जेल में भेजा जाएगा। अरे भेजो जेल में भेजना चाहते हो भेजो। ये वाजपेयी जी हमारे राज्य से आते, कहते इनको जेल में भेजा जाएगा। अरे भेजो जेल में, जेल से कौन डरता है? किसको डरा रहे हो आप जेल से भाई? आप भेजिए जेल में सर, यही सदन से जेल भेज दीजिए सर, सदन से जेल भेज दीजिए, जेल से डराइए मत। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सदन से जेल भेज दीजिए। आप सरकार में, सत्ता में, आप जेल भेजना चाहते हैं। आप लोग चिल्ला रहे हैं जेल भेजेंगे, यही से भेजिए। ओके अगर नीरज जी, मिस्टर नीरज डांगी, प्लीज स्टार्ट द डिबेट। अंतिम नहीं, ओके, अंतिम लाइन, 1 सेकंड, अंतिम लाइन। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये मेरी प्रबल धारणा है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की विरोधी है, ये मैं मानता हूं। इसी से तो हम आपत्ति करते हैं। Your leader is speaking. Don't you want to hear your minister? No, Mr. Nagar, you don't want to hear your minister.
ऐसा वक्त संजय सिंह जी ने जो दिया है, इसी कारण से तो हाउस में, सदन में गड़बड़ पैदा होता है। आप इस तरह का झूठा बातें करके आपने धरने से क्या होता है? आप सर, मेरा एक पॉइंट, लेडी जब हमारा चेयर के पोजीशन में थे तो इंसल्ट आप लोगों ने किया। अभी आदिवासी राष्ट्रपति को इंसल्ट आप लोगों ने किया है। हमारे जितना भी ट्राइबल्स, जितना भी आदिवासी, ओबीसी और एससी के बारे में अपमानजनक जितना भी टिप्पणी आपकी ओर से हुए। आप संजय सिंह जी, आप आम आदमी का पार्टी का, आप कांग्रेस का नहीं है। आप अगर इतिहास को देख करके, इतिहास कोई 400-500 साल नहीं है, 1947 से लेकर के 2024 तक का इतिहास देख लीजिए। कौन सा प्रधानमंत्री, कांग्रेस का कौन प्रधानमंत्री ने आरक्षण का विरोध किया? और हमको आप एलिगेशन लगाते हो, फिर कहते हो कि हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाउस हमने एडजॉर्न नहीं किया। हंगामा करने के बाद जब व्यवस्था नहीं था तो चेयर से सदन का जो माहौल देखते हुए स्थगन किया। आप क्यों इसमें, आप गवर्नमेंट को हाउस डिस्टर्ब कर रहे हैं बोल के आप कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं? इसलिए जो मूल रूप से जो बातें उठाए गए हैं, हम लोग ट्वीट नॉर्मली, पोस्ट फेसबुक जो भी करता है, मैं उसके बारे में नहीं कर रहा हूं। आज पर्टिकुलरली जब सदन में चर्चा हो रही थी, इस बीच आपने अगर गलत ट्वीट किया है जो सही नहीं है, वास्तविकता नहीं है, और आपने इस बीच में मिसलीडिंग ट्वीट किया है, क्योंकि चर्चा हम लोग चल रहे हैं वर्तमान में, उसी को अगर पीयूष गोयल जी ने जो कहा है, अगर ट्वीट आपने किया है तो मिसलीडिंग है, उसको डिलीट करना चाहिए और आप सदन से माफी मांगना चाहिए। Honorable members, one second. Honorable members, in the interest of the House, I will treat it as a point of order and wait for my ruling. Let us move ahead, number one. Number two, how we should conduct ourselves in the House. The issue was determined under the chairmanship of late Shri S.B. Chauhan, a veteran parliamentarian, a great leader, and that was the first ethics committee. And that was the first ever ethics committee in any legislature in this country. And that distinction went to Rajya Sabha. And there, after elaborate discussion, getting input from all segments of the society beyond parliamentarians, that committee, whose chairman was late Shri S.B. Chauhan, had given some guidelines for members. And one of the guidelines has been shredded today. That guideline is, I requested members yesterday also, please go through that ethics committee. It has been uploaded on your system. If you will go through it, you will get energized. This is not the kind of discourse we should be having. We have to ensure that we make our point in a manner which is not inflammatory. Number one. Number two, whether with respect to proceedings of the House, a member can project something outside, that is an issue which I will decide, and input may be given by the Honorable Minister and by Mr. Sanjay Singh, both of them. I will give them, looking to the importance of the matter, you can give your input by noon till Monday, and I will decide it so that honorable members know how do we conduct ourselves in the House and how we relate proceedings of the House outside. I had the great painful decision-making process involved when Rajni Ashok Rao Patil ji, with respect to proceedings of the House, had to be suspended. I in detail have given that. The Privileges Committee has imparted an order to that effect. Honorable members, please go through that also. Now let Mr. Dangi, who will maintain sobriety, composure, but will have his say. Please. And listen to him. If you don't agree with him, it is your right. If he says something which is outrageously wrong, you can take recourse to breach of privilege, but you cannot interrupt. If he says something which is impermissible, interruption will be further impermissible. Please go ahead and take care of the sentiments of the House also. सर मैंने तो सेंटीमेंट्स का पूरा ध्यान रखा, बात करो, लेकिन समय बहुत कम है आपके लिए आज।
You can continue. बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। जातीय जनगणना के अलावा इस बिल को लेकर के एक चैलेंज जो है वो निजीकरण का भी है कि जिस प्रकार से निजी क्षेत्र ने जब से सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में प्रवेश किया है और उसे संचालित किया है, तो इसमें ये सुनिश्चित नहीं हो पाया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के अधिकारों की, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा का क्या सूत्र रहेगा, किस तरह से उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा। ये भी बहुत आवश्यक कदम इस बिल के अंदर लिया जाना है। मैं समझता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में जब हम बात करें तो कुछ एफर्मेटिव एक्शंस की नीतियों का कानूनी आधार संविधान में पाया जाना चाहिए। संविधान सरकार के विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचकों के लिए एक योजना तैयार करता है, जो आर्टिकल 15 और 16 राज्यों को महिलाओं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। मैं इस मौके पे ये भी कहना चाहूँगा कि जब हम बैकलॉग्स की बात करते हैं तो आज की तारीख में हज़ारों बैकलॉग जो है आरक्षित पदों की वो रिक्त पड़े हैं। बड़े मंत्रालयों के अंदर भी जो है रिक्तियाँ पूरी नहीं हुई हैं। बैकलॉग्स के सूद लेने के लिए किसी प्रकार की कोई नोडल एजेंसी भी नियुक्त नहीं हुई है। ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि बैकलॉग्स की जब बात करते हैं, मंत्रालयों के अलावा IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी बैकलॉग्स का भारी जो है रिक्तता का स्थान है। अगर हम आंकड़ों पे बात करें तो IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, कोझिकोड, इंदौर, लखनऊ, शिलोंग, इनकी जो फैकल्टीज़ में जनरल फैकल्टी जो है वो 524 पदों की है। वहीं OBC के मात्र 6, SC के मात्र 3, ST के 0 फैकल्टी हैं। ऐसे में ये आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियां जो है बैकलॉग्स को लेकर के हैं, उसे भी पूरा किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि आज की परिस्थितियों में जहां आरक्षण की बात आती है तो यहाँ चाहे समण हो, चाहे कोई भी जाति हो, हर जाति आरक्षण की मांग कर रही है। ऐसे में ग्रामीण अंचलों में रहने वाली पिछड़ी जातियां जो हैं, जो वंचित जातियां हैं, उन्हें उनका जो हक मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। और ऐसी जातियों में जिन्हें आरक्षण तो मिला है परंतु सरकार की ओर से सूद नहीं लेने की वजह से नौकरियों में और अन्य कार्यों में उनकी भागीदारी नहीं हो पाई। यहाँ इस वक्त यही कहना चाहूँगा कि जब हम लोग बात करते हैं इन वर्गों की, इनके विकास के लिए आरक्षित की गई धनराशि का उपयोग भी कई बार जो है दूसरी योजनाओं में काम में ले लिया जाता है, जो नहीं होना चाहिए। सरकार को निजी क्षेत्र की सभी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC समुदाय को आरक्षण देने पर भी विचार करना चाहिए, जिससे उन्हें समृद्ध बनाया जा सके। सरकार का लक्ष्य यही होना चाहिए कि जो समाज के अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो वंचित जाति है, उसे मुख्यधारा में कैसे लाया जाए। जातियों के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम बात कर रहे हैं, अभी चर्चा जो है हो रही थी कि आदिवासी राष्ट्रपति महिला हमारी राष्ट्रपति हैं, तो इस सदन के जो है इसका भवन का जब उन्हें आमंत्रण देना चाहिए था इनॉग्रेशन के टाइम, वही नहीं दिया गया है, तो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाना नहीं चाहिए इस तरह का। ये एलिगेशन वहां से आया है, ये एलिगेशन वहां से आया, इसलिए मैं रख रहा हूं अपनी बात को। तो ऐसे में जो है हमने ये सोचना चाहिए। यहाँ जब मैं बोल रहा हूँ, मैं एक दलित वर्ग से आता हूँ, मुझे भी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं ऐसा क्या मैंने कह दिया। जो बात यहाँ रखी है वो बात रखी है, तर्क के साथ रखी है, सत्यता के साथ रखी है। प्लीज आप अपनी बात। इसलिए ऐसे में हम लोग चाहेंगे कि यहाँ जब बात आ रही है आरक्षण की, तो 50% का जो गैप है उसको भी कैसे हटाया जाना चाहिए, राज्यों को कैसे उनका उसमें उसको शामिल किया जाना चाहिए, वो 27% और 22.5% का मामला जो है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए।
इन पर बात करी जाए और इसको, जैसा कि मैंने कहा, निजी क्षेत्र की बात, उसके में भी इसका समायोजन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि टेक योर सीट नाउ ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज टेक योर सीट। नो, नेक्स्ट टाइम इज ओवर, प्लीज। Honorable members, as the time for private members' legislative business was till 4:30 p.m., we may resume the general discussion on the union budget now. माननीय श्री गुलाम अली जी, प्लीज। माननीय श्री गुलाम अली जी, बजट पे आप बोल रहे थे, बजट पे आपका जो समय बचा है उसका उपयोग करें। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर। मुझे आपने मौका दिया। भारत की वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण जी ने जो यूनियन बजट पेश करा 24-25 और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो बजट है, वो दोनों को लोकसभा और राज्यसभा में कंसिडरेशन के लिए रखा है। मैं इनकी सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ और जम्मू कश्मीर में मोटे तौर पर बजट को एनहेंस करा है और वहाँ जीडीपी बढ़ा है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही है कि जम्मू कश्मीर की 1.25 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, लेकिन उसका जो एम्प्लॉइज़ का रेशो है वो बिहार जैसी बड़ी स्टेट के बराबर है। और इसके साथ साथ स्पेशल पुलिस का जो असिस्टेंट पहली बार हुआ है। डिप्टी चेयरमैन सर, जम्मू कश्मीर में अमन लाना एक बहुत मुश्किल काम था और वहाँ कैलेंडर लगते थे और वहाँ गरीब के बच्चे पत्थर मारने के लिए इस्तेमाल होते थे। आज वहाँ गरीब का बच्चा जो है वो स्कूल में जाता है, जिमीदार आज खेत में जाता है और आज वहाँ के लोगों ने, अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुआ है उसमें जो नेपोटिज्म था, फैमिली का जो फैमिली राज था वो ख़त्म करा है और वहाँ स्टोन पेल्टिंग जो है वो नील हो गया है। लोकल जो लोग मिलिटेंसी में हैं वो रिक्रूटमेंट जो है वो लोअर हुई है, कम हुई है, ना के बराबर हुई है। आज़ादी के बाद डिप्टी चेयरमैन सर, हमने इंडस्ट्री के लिए 14,000 करोड़ रुपया पिछले 60 सालों में रिसीव हुआ, लेकिन अभी जो इन्वेस्टमेंट है, प्रपोजल जो है वो 81,122 करोड़ रुपया सिर्फ 2 सालों में इंडस्ट्री के लिए बागुजार किया है, जिसके लिए 18,000 कनाल ज़मीन जो है वो अलाट हो चुकी है। टूरिज़्म वहाँ 2 तरह का रहता है। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी उस पर निर्भर है। वहाँ पिछला जो डाटा है वो करीब 2 करोड़ के करीब जो हाईएस्ट है जो भी हमारे देश में टूरिस्ट स्पॉट है। इसके साथ साथ कश्मीर को एक आज डेस्टिनेशन बनाया है। रिलीजियस पिलग्रिम जो है वो भी, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है और एक अमन और खुशहाली की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। आज वहाँ स्ट्राइक का टेकर्स कोई नहीं है। कल तक जो बिजनेस वाला, रेडी फड़ी वाला और एक ख्वाब था, लेकिन आज वहाँ नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में और वजीर दाखिला अमित शाह जी की रहनुमाई में और वहाँ एलजी प्रशासन ने आज अमन से गरीब अपनी नींद सोता है और रेडी फड़ी वाला, छोटा बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन अपने कारोबार पे जाते हैं। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, हमने उन तबकों को, जो सरकारें वहाँ रही हैं, ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है और जहाँ वहाँ की रीजनल पार्टीज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की रही है, लेकिन हमारा ओबीसी समाज, जिसको सिर्फ ओएससी नाम की सिर्फ 2% रिजर्वेशन थी,
भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में उनको बढ़ा के 8% किया है। हम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात करने पे विश्वास नहीं रखती, वो देने पे विश्वास रखती है। डिप्टी चेयरमैन सर, वहां शेड्यूल्ड ट्राइब को सिर्फ नौकरियों में और प्रोफेशनल कॉलेजेस में रिजर्वेशन थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने शेड्यूल्ड ट्राइब को वहां 9 सीटें रिजर्व करी हैं और उसके साथ साथ हमारा पीड़ित समाज। आपका समय पूरा हुआ, आप जल्द खत्म करें। एक लाइन प्लीज, सब पार्टी का समय नहीं, पार्टी लिख कर देगी तो आप अपनी बात खत्म सर अभी करें। तो मुझे दे दीजिए सर। इसके साथ साथ हमने वहां लैंडलेस लोग थे, उनको 5 मरले जमीन दिया है। सर हमने लोगों को जोड़ा है, कभी जम्मू और कश्मीर में लड़वाया है, कभी वहां के सेगमेंट्स हैं गुज्जर और पहाड़ी में लड़वाया है। सर मैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को, देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को, HM को मैं मुबारकबाद दूंगा कि शफाफ तरीन इलेक्शन जो है अभी हुआ है और जिसमें वोटिंग परसेंटेज 60% तक हुई है। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, 35 साल के बाद वहां इलेक्शन बाइकाट नहीं करा है और आज इलेक्शन के प्रो में और एक अंडर करंट है लोगों में जो कि एंटी डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन था लोगों का, आज प्रो डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन है। आज वहां सिनेमा फल फूल रहे हैं। कश्मीर की कली, आई एम कंक्लूडिंग सर, कश्मीर की कली मेरे सनम जब जब फूल खिले, वो 60-70 में कहीं उनकी हुई थी। आज वहां सिंगम हमारे अजय देवगन जी, ग्राउंड जीरो इमरान हाशमी और बड़े बड़े जो मूवी वाले हैं वो वहां कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय गुलाम अली जी। माननीय श्री विक्रमजीत सिंह साहनी जी, 5 मिनट।